Okay, anyways, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's today go on with the. We have basically read the physically a lot of stuff, right? Like media and all. Then, if you have to transmit data, if you want to transmit data, you can do it either two ways. Data transmission, you know, can occur either two ways. Either you can transmit data that is parallel or serial. And in serial, we have two. Either it is asynchronous and synchronous. So this is how we transmit our data. Either it should be parallel or it will be serial, right? And asynchronous or synchronous. In a parallel, what you do is parallel is something which is really good because you are sending data in parallel. For example, you have two devices and you want to send, maybe they may be the two computers. You are sending data parallel. Okay, for example, we have 8 bit 8 lines, for example, to send. So this is 0 1 2 3 4 5 6 and 7, right? So we have basically 8 bits. This in this time I'm having 8 bits. We could have 16 bits or 32 bits, and I'm having parallel lines to transmit that from source A to destination A. Now in this seems to be very good because it will be very fast because you are sending all the 8 bits in a one clock pulse. So everything goes in a one clock pulse from here on here. Or you may have 16 bits or 32 bits or whatever. That's parallel. But the problem is you can't do this for a long distance. The advantage of it, this is speed. Okay, what will be the advantage of this? That will be speed definitely because you are sending whole data parallel in parallel. But the problem is you cannot use this for a long distance. Why you can't use it for long distance? First thing will be the cost. You're also right. But first thing will be the cost because you have to go for parallel lines. Okay, जहाँ आपको एक लाइन इस्तेमाल करनी है, there you have to use say 8 lines. You can do in a single line also, and it will be very huge amount to go for such an 8 lines or 16 lines or 32 lines depending on the bits, how much of lines you will be having. ठीक है, इन पैरेलल आपको इतनी लाइंस लगानी है और उन लाइंस के आपस में फिर एटेन्यूएशन भी होगा, जैसे वो बता रहा सर, it will be attenuated and all, right? There will be a lot of noise impulses and all, so वो चीज़ भी हो जाएगा आपस में, क्योंकि वायर्स बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी वायर्स में चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें आपस में attenuation एंड आपस में ये तो होगी, इंटरफ्रेंस तो होगी, so there will be interference, right? And the most important thing is the cost because it will be very costly. Those wires will be very costly, and it will not be possible to have those 16 wires or whatever 32-bit wires because today we have a huge bits of data to send that much of wires, right? So but this will be ideal for our short distances. For example, you have on a motherboard, a chassis of your computer, you want to send between RAM and between the processor and the RAM, there you will use that. It's very short distance and you can afford that much of thing, because there you will not have a serial because it will be a little slow. Junaid Abisar Raja, come on this side. ठीक है? So therefore, where is the parallel transmission? थोड़ा हल्का right, मोमिन left हल्का सा. Okay. So question is where will you use the parallel transmission? In the short distance. And what is the basic advantage of parallel? It is very fast. Speed, yeah.
It is fast. But you will not use it for a long transmission because of cost, because of the interference and all. So what will you use there? Today we will also do the question RS232, which comes in exam all the time, right? So be careful what I'm saying. So we will use a serial transmission. Okay, this also comes in maximum time question. What are the transmission modes? Question asks what's the transmission modes? What are the different transmission modes or like that? This also comes in exam regularly. So in a serial, now we go for not a parallel, we go for a serial transmission, wherein we have basically a one channel to pass in. And if you have to send data, for example, this was like 101010, this is our 8-bit or whatever 16-bit data, it will be sent one on one. First this will be sent, then this bit, then this bit, then this bit, and this bit, and so on. Okay, because we have a serial channel. In a serial we have a sequential flow. Are you getting me? So it seems that we are having this will be very slow. This is true. This will be slow than the parallel transmission, because in serial transmission you have to first send this one, then you have to send 0. In parallel transmission you would have sent all at once, is it? But in serial transmission it will be a little bit slow than the parallel transmission. But we have a lot of techniques where we increase the flow and all. But basic idea is that you have only single wire. We don't have only single wire, we have a few more wires for control and all. For clocking, maybe sometimes we use clocking for another wire and like that. Getting me? But basic idea is that your wiring is reduced. Your wiring is reduced very much. कहाँ आपकी 8 32 या कितने भी आपको बिट्स वायर्स थे, वहाँ आपने एक वायर लगा लिया है. And it can go for long transmission as well. Okay, it is cost effective. और इसमें आपके आपस में क्योंकि एक ही वायर है दूसरी वायर के साथ, तो इसमें इंटरफ्रेंस भी नहीं होगी. वरना वहाँ पे आपको पैरिटीज एंड ऑल लगानी पड़ती पूरे बहुत सारी, यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, लेकिन उतना नहीं होगा इसमें एरर्स जितने कि वहाँ होते पैरेलल में होते. ठीक है. सो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. एंड जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से हम सीरियली इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इट विल बी लेस कॉस्टली. ठीक है, बात समझ आ रही है? अब सीरियल जो है वो 2 तरीके से होता है. इनफैक्ट वो 3 तरीके से होता है. मैंने 2 भी लिखे यहाँ पे. एक्चुअली तीसरा भी तरीका है, दैट इज कॉल्ड आइसोक्रोनस. The first thing is asynchronous, the simplest one and the oldest one. ठीक है, but this is oldest that we don't do these days. So we have asynchronous. ये asynchronous किस में आता है, पैरेलल में या सीरियल में? Now we have asynchronous transmission. In asynchronous transmission, as the name suggests, asynchronous. A means not. Synchronous means not tied with the clock. So in asynchronous transmission, basically, what we have is our sender and receiver, they are not tied with a particular clock. Okay? You getting me? So they are not tied with the clock. You send data, and you don't worry about the clock of the other guy. You getting me? So you are free to send. Basically, what happened is in those days we had little data to send, like 8-bit data, for example, we send. And we basically in asynchronous transmission, what happened is first this started when we started serial transmission. The thing started, the asynchronous transmission started. It is very past thing what I'm saying. Okay, वहाँ पे क्या करते थे हम कैरेक्टर भेजते थे. We send and then we stop, then we send again a character, then stop, then send again another character, then stop.
then set another character and then stop. And this is what is used these days in our keyboard and mouse. The keyboard, you send something and then wait, and then you again sending something. It is asynchronous. It doesn't need to be synchronous with your device. You getting what I'm saying? Sure. इसका नीचे वाला कहाँ है ये? हाँ ग्रीन वो है नहीं बे? हाँ है. Okay. Are you getting what I'm saying? Now keyboard, this is the perfect example of asynchronous transmission. Because here what you do, you send some character. You're sending an ASCII character from keyboard and then stop and send and stop. So basically the ASCII characters later on, they were like, because I'm saying you send character by character. This is called a character transmission. This is called what? In this we had a character transmission. And the example of it is the first protocol in our data link layer, that is called HDLC, high data link control. This is the first protocol which is bit oriented protocol. That is your character, that's what where we have the character transmission and all. Okay, we'll be reading HDLC. We'll read about this HDLC perfectly. Now what happens is here in the character transmission is because you are sending one word. In those days, ASCII characters were just 5 bits. 2 raised power 5 is equal to 32, right? Because you had like these 26 characters to send. तो आपको 26 ही करने थे. 2 raised power 5 is 32. ठीक है, 32 5 बिट्स का होता था ASCII. लेकिन बाद में हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स बाकी चीज़ें आ गई तो ये बढ़ के 8 बन गया ना, 8 कैरेक्टर का. 2 raised power 8, 128 these days. एंड आजकल तो हमारे पास 16 होता है बिकॉज वी हैव यूनिकोड कैरेक्टर्स. उसमें हम चाइनीज़ के कैरेक्टर सेट एंड बाकी आजकल यूनिकोड चलता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं. ठीक है, इसीलिए आपने जावा में देखा कि वहाँ पे आपका कैरेक्टर जो था वो 1 बाइट नहीं था, वो 2 बाइट था बिकॉज इज टेकिंग द यूनिकोड. लेकिन जो उन दिनों तो था 5 बिट का होता था, फिर 8 बिट हो गया. अब जो वर्ड आपका कैरेक्टर जो आपका है दैट विल बी 8 बिट एंड दैट मीन्स यू आर सेंडिंग 8 बिट्स. यू आर सेंडिंग व्हाट? बट व्हाट हैपेंड इज हाउ वी सेंड दैट, बिकॉज हमारे पास क्लॉक तो है नहीं, एसिंक्रोनस है, क्लॉक के साथ टाई तो है नहीं, इसलिए बताना पड़ेगा सोर्स को और डेस्टिनेशन को कि भैया मैं भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग. यू हैव टू टेल द डेस्टिनेशन दैट आई एम सेंडिंग दिस डेटा. somehow you have to synchronize, na? You are talking with some guy, you have to at least what do you do? I want to talk to, for example, Junaid. I said him jao wahan pe jao. What I did first, my information was go there on the right side, right? But what I did first, I said Junaid, because he understood that this is something what's called a start bit, because we are not tied with the clock. But he doesn't know that I am going to send, because if I tied clock, that means they are in agreement that now this bit will come and I have to get it, now this bit will come, I have to get it, because they are tied with the clock. But here it is asynchronous, we are not tied with the clock. That means when you send, the bit itself should have something which let it to synchronize with the sender and the receiver. You getting me? So we have to add additional bits in addition to our data. So we basically have these 8 bits, right? If I take ASCII as my 8 bit, we have an 8 bit character. This is my 8 bit character. But to begin with, I have to use a start bit. This is usually some 1 means some high volt. So that because usually if we are not sending, there is a 0 volt. That means the channel is idle, not ideal, sorry. The channel is idle. Now the channel idle है, तो उसमें आप स्टार्ट के लिए अब एक 1 लगा दो, यानी कि हाई वोल्टेज लगा दो, जिससे कि जो रिसीवर आपका होगा उसको पता चलेगा नहीं कुछ आ रहा है यार, कोई हो रहा है कुछ, ठीक है, समथिंग इज कमिंग. सो वो एक किस्म से होशियार हो जाएगा. सो ही विल गेट समथिंग, द डेटा इज कमिंग. सो वी नीड अ स्टार्ट बिट टू से दिस इज फॉर द रिसीवर. रिसीवर को पता चलेगा कि नहीं कुछ आने वाला है. उसके बाद हम अपने 8 बिट्स हम भेजेंगे, ठीक है, जो हमें भेजना होगा क्या भेजेंगे.
और उसके बाद ये तो ये करेंगे काम कि एक दो चीज़ें और होंगी, ठीक है। एक को कहते हैं स्टॉप बिट और एक हमारा पैरिटी भी लग सकता है, मे और मे नॉट बी। वी यूज मैक्सिमम टाइम्स ए पैरिटी बिट विच विल टेल अस ताकि एरर करेक्शन हो जाए, ठीक है। एंड देन वी हैव द स्टॉप बिट्स ऑल्सो। द स्टॉप बिट्स आर वन और मोर, इट कुड बी 2 बिट्स, ओके, ताकि स्टॉप पता चले कि ये स्टॉप हो गया, ये बिट स्टॉप हो गई, एंड इट हैज़ टू बी डिफरेंट देन द स्टार्ट बिट, क्योंकि अगर ये वही होगा तो फिर उसको कंफ्यूज हो सकता है कि आप दूसरा स्टार्ट हो रहा है, इसलिए स्टॉप हैज़ टू बी लिटिल डिफरेंट, राइट, मे बी कपल ऑफ वंस और लाइक दैट। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन इसमें जो है आपका बॉड रेट, इसमें जो डिसएडवांटेज दिख रही है, द बॉड रेट इज लेसर देन बिट रेट, द बॉड रेट सॉरी मोर देन बिट रेट। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू ऑलवेज, आवर बिट रेट शुड बी मोर देन अ बॉड रेट। यानी कि अगर आप एक सिग्नल भेज रहे हो, वो सिग्नल में हम चाहते हैं कि एक सिग्नल मेरे पास 3 बिट्स ले, 4 बिट्स ले, 5 बिट्स ले, बिट इंक्रीज हो, राइट। व्हाट इज बॉड रेट? नंबर ऑफ सिग्नल्स। द बिट रेट इज नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड। अब बिट बॉड मैंने कहा कि जितने, जैसे हमने क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा, उसमें हमने क्या किया, एक सिग्नल मेरे पास 3 बिट्स ले रही थी, 2 बिट्स ले रही थी, डिपेंडिंग अपॉन द आपने कितने एम्पलीट्यूड में कितने फेजेस लिए हुए हैं। जितने आप एम्पलीट्यूड फेज की कॉम्बिनेशन लोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स रिप्रेजेंट होंगे, जो परसों ही पढ़ा ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स रिप्रेजेंट होंगे यूजिंग ए वन सिग्नल। सो आपकी बिट रेट इंक्रीज होगी, योर बिट रेट विल बी इंक्रीज। बट हियर माई बिट रेट इज लेसर देन बॉड रेट। इफ यू कुड सी हियर कि मुझे कितने भेजना पड़ रहा है, एक मुझे स्टार्ट बिट, कुल जो है एक स्टार्ट बिट है, फिर 8 बिट्स अपना डेटा है, क्योंकि भेज दो रहा हूँ मैं डेटा जो असली चीज़ है, दैट इज 8 बिट, हाउ मच, प्लस उसके बाद एक पैरिटी बिट, दिस मे और मे नॉट बी, है, प्लस उसके बाद मैं कम से कम 2 बिट्स जो मेरे हैं स्टॉप बिट्स के होंगे, ठीक है। अगर मैंने पैरिटी बिट नहीं ली तो 11 बिट्स मुझे भेजने हैं, ठीक है। अगर मैंने पैरिटी बिट भी ली तो 12 बिट्स में भेज रहा हूँ, लेकिन डेटा कितना है, यानी कि 12 बिट्स मीन्स 12 सिग्नल्स यहाँ पे, तो सिग्नल्स तो मैं 12 भेज रहा हूँ, लेकिन डेटा कितना भेज रहा हूँ, 8। तो सिग्नल कम है या ज़्यादा है सिग्नल बिट से, ठीक है। सो माई बिट रेट फॉल्स, so it's less efficient, so simply it can see it's less efficient. Why is it less efficient? Because आप कोई भी चीज़ करो, आप सिंक्रोनस ही क्यों ना करो, लिसन, आप सिंक्रोनस ही क्यों ना करो, आपको ये भेजना पड़ेगा लास्ट और एंड, इसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं, ओके, प्रीएम्बल एंड पोस्ट एम्बल बोलते हैं हम इसको, यानी कि स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ थिंग्स वी हैव टू सेंड। लेकिन यहाँ पे हर एक कैरेक्टर के साथ करना पड़ेगा ये, मैं एक ए दबा रहा हूँ यहाँ पे कीबोर्ड के साथ, उस ए के साथ ये चीज़ें आ रही हैं, बी दबा रहा हूँ बी के साथ आ रही है, यानी कि हर कैरेक्टर ने कि अगर मुझे किलो बिट एंड मेगा बिट्स ऑफ डेटा भेजना है, आप अंदाज़ा कीजिए हर एक एक बिट, एक एक बाइट के साथ, एक बाइट होगा ना, ये 8 बिट्स का एक बाइट, यानी कि एक कैरेक्टर में भेज रहा हूँ ना, आई एम टॉकिंग दिस माई ASCII कैरेक्टर लाइक ए, आई एम सेंडिंग ए। अब मुझे एक पूरा सा पैराग्राफ, एक मेगाबाइट ऑफ डेटा भेजना है, हर बाइट के साथ आपको ये 2 + 1 3 + 4 बिट्स आप एक्स्ट्रा भेज रहे हो हर बाइट के साथ। तो अंदाज़ा लगाओ अगर मैं मेगाबाइट है, अगर गीगाबाइट है, तो उसमें कितना ह्यूज बन जाएगा ये एडिशनल जो आपका ओवरहेड है। सो दिस इज ह्यूज ओवरहेड, आर यू गेटिंग मी? दिस इज नॉट बिकॉज वी डोंट सेंड वन कैरेक्टर ओनली, व्हेन यू हैव टू सेंड ह्यूज थिंग्स, यूजुअली वी सेंड in lot of data these days, especially these days we are sending lot of data, isn't it? So today we have speed of हमारा स्पीड जो आ रही है आजकल बहुत ज़्यादा, 321 मेगाबिट्स पर सेकंड, मेगाबिट्स पर सेकंड, एक सेकंड में हम इतना स्पीड से, ये इसलिए स्पीड है क्योंकि बिकॉज हमारे डेटा हम सेंड कर रहे हैं, वी आर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इन ए ह्यूज अमाउंट दीज डेज। सो दैट मीन्स अगर हम ये चीज़ करेंगे, इट विल हैव ए ह्यूज ओवरहेड, दैट इज़ अनबेरेबल। बट कुछ डिवाइसेस जो कि स्लो डिवाइसेस है, जैसे आपका कीबोर्ड वीबोर्ड है, चलो इनके साथ कर लेते हैं, बिकॉज और कीबोर्ड में भी उतना डेटा हमें सेंड नहीं करना, इट इज़ आइडल फॉर दैट, आर यू गेटिंग मी? सो नाउ देयरफॉर व्हाट यू डू इज वी हैव द सिंक्रोनस, वी हैव व्हाट, वी डोंट यूज दिस एसिंक्रोनस, वी यूज सिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस में बहुत सारे फायदे हमें हैं, और ये रिमूव करना है हमें, ये खासकर ओवरहेड जो इसका है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इट?
Descendant is extra bit, redundant bits. I will call it in a overhead. In a short I said overhead. इसका बहुत सारा overhead है. एक्स्ट्रा बिट्स आपके बहुत सारे लगेंगे अगर आपका 1 मेगाबाइट डाटा है, क्योंकि 8 बिट्स के लिए आपको 4 बिट्स का लगता है. आप समझो 50% आपको एक्स्ट्रा लग रहा है. 8 बिट्स में 4 बिट्स यानी कि 50% जो आपका है वो यानी कि 50% ही आपकी एफिशिएंसी है. अगर आपकी एफिशिएंसी फिर एफिशिएंसी इज अराउंड सम 80% और 90%, अगर 100% भी नहीं है चलो ठीक है, बट इफ इट इज अराउंड अबव 80% वी से ओके दिस ओके. बट इफ इट हैज ड्रॉप टू द 50% और अगर आप पैरिटी बिट हटा दो तो 60%, सो दिस विल बी दिस इज नॉट गुड. दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? ओके, सो इसलिए हम इसको नहीं करते. जो हमें ट्रांसमिशन करना है आजकल जो होता है हमारा ट्रांसमिशन होता है, वी डोंट डू द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, रादर वी डू what we do is the synchronous transmission, so which is again the second of the serial. क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सीरियल ट्रांसमिशन में पहला था एसिंक्रोनस, दूसरा है सिंक्रोनस. बात समझ आ रही है? Anybody having problems? Do tell me. This is a very important question and you should understand it each a bit. Why we are doing it? We have done a lot of things we have read. You can understand it easily now. वरना अगर वो चीज़ें पता नहीं होती तो ये गोटा हो जाता. सो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या करते हैं काम? हम क्लॉक के ऊपर काम करते हैं कि जो क्लॉक है वो हमें बताएगा कि जब व्हेन यू आर टाइड टुगेदर विद द क्लॉक, लिसन, व्हेन यू आर टाइड टुगेदर विद द क्लॉक यू नो द डेटा इज कमिंग, राइट? सो आइदर वी हैव टू व्हाट, पहली बात है कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे की जाए. हाउ वी डू द सिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइजेशन में या एक काम करेंगे हम कि हम एक अलग तार रखेंगे एंड वी यूज एन एडिशनल वायर जो कि क्लॉक का काम करेगी. वी सिंक्रोनाइज, right? But that will be not a good thing, because if you have a long wire and you have to use the one wire extra for the clock, that is not a good thing. And what we can do is, you already have read that is Manchester and differential Manchester encoding, wherein we do synchronization. How? कैसे हमने synchronization की वहाँ? What does that mean? सिंक्रोनाइजेशन कैसे हमने की? यूजिंग द आरजी. यू आर राइट, बट व्हाट इज दैट? क्योंकि हम ट्रांजिशन करते हैं इन बिटवीन द बिट. सो यू अंडरस्टैंड बिटवीन द बिट की कहाँ स्टार्ट है कहाँ एंड है, तो क्लॉक रखने की तो जरूरत ही नहीं है. ठीक है, हमारा जो बिट है, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू सेंड द डेटा यू आर सेंडिंग नॉट लाइक ए कांस्टेंट वोल्टेज लाइक दिस. ठीक है, रादर यू डू हाई टू लो, लो टू हाई. इज इट? जैसे मैंने किया था, जैसे ऐसे भेजोगे, ठीक है, या मेरा ये 0 है, ऐसे भेजोगे इसको. अब जो इसमें जो है ना, ये अगर ये बिट जा रही है, वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज स्टार्ट एंड दिस इज एंड ऑफ द बिट, बिकॉज देयर इज अ ट्रांजिशन इन बिटवीन. ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन हम बिट से ही ले सकते हैं. हमें अलग क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं है. जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसी में से हम सिंक्रोनाइजेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे रिसीवर के पास एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूनिट होना चाहिए. And what the procedure it will use is called a phase lock loop. जो कि आपके देखिए, आप यू रिमेन एब्सेंट, इसलिए आपने मैनचेस्टर जिसमें रिवीजन भी हमने किया था. सो पढ़ा था लेकिन रिवीजन भी हमने किया था. बट व्हाट हैपेंस इज रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट होती है, उससे कॉन्सेप्ट पक्का भी समझ में आता है. अच्छा, फेज लॉक लूप से क्या होता है काम? वो सिंक्रोनाइजेशन बिट पैटर्न से निकालता है. किससे? द बिट पैटर्न्स व्हाट वी हैव, वी गेट द सिंक्रोनाइजेशन आउट ऑफ द बिट पैटर्न. यू गेटिंग मी? सो अलग यानी कि आपका अलग जो आपका है ये क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड वी सेंड अवर डेटा. द क्वेश्चन इज, डू वी सेंड इन बिट्स? ओके, the question is, do we send using what? Bits, like those bytes, जो हमारी बाइट थी ना, क्या वैसे करेंगे? हम ऐसा नहीं करते.
हम क्या काम करते हैं, हम एक फ्रेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वी यूज टू मेक फ्रेम्स, एंड दिस इज द मेन जॉब ऑफ योर डेटा लिंक लेयर। जो आपका इसके बाद आप, सो वी आर नाउ मूविंग टू द वन लेयर अप फ्रॉम फिजिकल टू डेटा लिंक लेयर, बेसिकली वी आर मूविंग, राइट? सो डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग होती है। द मैक्सिमम टाइम व्हाट वी डू इज अ फ्रेमिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, वी विल रीड दैट। एरर कंट्रोल भी हम पढ़ ही चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब जो आपका नेटवर्क लेयर है उसके बाद वो आपकी पैकेट्स बनाएगी, ओके, लेकिन यहाँ पे फ्रेम्स बनेंगे। क्या बनेंगे? नाउ दिस इज आवर बेसिक आइडिया इज टू मेक ए फ्रेम। फ्रेम में क्या है? फ्रेम में आपके कॉन्टिन्यूस डेटा है, हम कॉन्टिन्यूस डेटा रखते हैं। 8-8 बिट्स के मान लो कैरेक्टर्स हैं, देयर इज नो नीड टू राइट 8-8 बिट्स का जो मैं बना रहा हूँ ना बीच में, बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देर कॉन्टिन्यूस। मैं इसे दिखा रहा हूँ। द डेटा इज कॉन्टिन्यूस, ones and zeros and all. There could be 1 kilobyte of data. There is but limit. It is not unlimited. Frame cannot be unlimited. There is some limit of a frame. ठीक है, कितना है क्या है वो हम पढ़ेंगे, डेटा लिंक लेयर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि फ्रेमिंग कैसे करते हैं। बट द आइडिया इज दैट यू हैव ए लॉट ऑफ बाइट्स इन इट, ओके। फिर हम इस फ्रेम को यहां पे हमारे पास प्रीएम्बल होगा, एंड यहां पे हमारे पास पोस्ट एम्बल होगा, जो कि ये बताएगा, पोस्ट एम्बल इट इज, जो ये बताएगा कि आपका डेटा जो है, वो जो फ्रेम है, दिस इज ये एंड हो गया या ये चला है। आप ठीक है, क्या ले नहीं रहा है? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा सा ठीक से बनाएंगे। ये इसका प्रीएम्बल और कंट्रोल फील्ड है, ये पोस्ट एम्बल है और ये प्रीएम्बल है, और ये कंट्रोल फील्ड्स हैं, कुछ इसके कंट्रोल फील्ड्स हैं। कंट्रोल फील्ड्स क्या है, प्रीएम्बल क्या है, पोस्ट एम्बल क्या है, वी विल बी रीडिंग दैट इन डिटेल, बट द बेसिक आइडिया वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर इन सिंक्रोनाइजेशन इज दैट वी हैव अ फ्रेम। और ये जो प्रीएम्बल और पोस्ट एम्बल का ये भी बता सकते हो आप कि ये भी तो एडिशनल डेटा ओवरहेड हो गया है ना। फिर क्या फ़ायदा आ गया हमें उससे? वहाँ पर भी हमें स्टॉप बिट एंड स्टॉप बिट और रखने पड़ते थे, है ना। हालांकि ये प्रीएम्बल 8 बिट का होगा, ये जो प्रीएम्बल आपका खुद का है, ये दिस विल बी 8 बिट फ्लैग, दिस विल बी ऑल्सो 8 बिट, एंड कंट्रोल बिट्स भी, कंट्रोल फील्ड्स भी आपके बहुत सारे बिट्स होंगे। अच्छा, अब तो हम तो वहाँ पे एक एक बिट ऐड कर रहे थे, यहाँ तो बहुत सारे ऐड कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है क्योंकि वहाँ के एक एक कैरेक्टर के साथ लगाना पड़ता था, यानी कि 8 बिट्स, यानी कि एक कैरेक्टर आपके साथ, हर एक 8 के साथ आपको 4 बिट्स लगाने पड़ते थे। यहाँ पे आपको 1 किलोबाइट ऑफ डेटा हो सकता है एक साथ, उन सब के लिए आपको एक ही प्रीएम्बल और पोस्ट एम्बल होगा। तो इसमें रिडक्शन होगी, ओवरहेड ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी? एट द बिट लेवल, वो फेज लॉक लूप हमारा होगा जो कि वो सिंक्रोनाइजेशन निकालेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी, क्योंकि हम एनकोडिंग टेक्निक्स लगाएंगे, द एनकोडिंग टेक्निक्स वी यूज, बाय दैट वी आर डूइंग द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। बात समझ आ रही है? सो इट्स अ मच बेटर थिंग, okay, it's a much better thing. That's what we do these days also. We do the framing, and we will do in a detail also of this. We will be, that's not in our syllabus, but we'll be reading all these, a lot of protocols we have, few protocols and all, so you will understanding what's happening. At least network layer तक तो पढ़ना चाहिए अच्छे से, ठीक है। ओके, तो अब मसला ये है कि हमारे पास कि अगर आपके पास इसमें ये ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी डिसएडवांटेज के ऊपर इसके आते हैं कि वो ये है कि अगर आपके पास वीडियो भेजना है या ऑडियो भेज रहे हो, यू हैव ऑडियो और वीडियो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप फ्रेम्स लगा रहे हो, क्योंकि ऑडियो एंड वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड अ ह्यूज डेटा, तो उसमें एक ही फ्रेम नहीं होगा, बहुत सारे फ्रेम्स होंगे, ठीक है। नाउ फ्रेम्स विल बी मेनी फ्रेम्स, यू हैव मेक अ वन फ्रेम, अनदर फ्रेम, अनदर फ्रेम, तो उससे क्या होगा, डेटा रेट थोड़ा वैरी हो जाएगा। अब जो मूवी आप देखते हो, मूवीज के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक दो चीज़ें स्किप भी होगी ना, जैसे कोई इसमें आ गया कुछ
ये आ गया, थोड़ा सा खराब हो गया वीडियो, ठीक है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, कभी तेज चलेगा कभी स्लो चलेगा, दैट विल बी व्हाट इज कॉल्ड इन कश्मीरी कल दूध, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इस अगर कहीं एक दो जगह खराब हो रहा है ना, ऐसे कुछ शक्ल खराब आ रही है थोड़ी सी, लेकिन ठीक होगी फिर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थोड़ी जिटरिंग होगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स टेक्निकली कॉल्ड जिटरिंग. But if the rate is not same, the data is coming faster because you have frames, now one frame is coming with a one rate, another frame is coming with another rate, उसमें प्रॉब्लम है, we cannot allow that. That means आपको सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम लेवल पे नहीं चाहिए, बल्कि पूरे डेटा के लिए चाहिए, ठीक है. दैट इज वाई वी डोंट यूज द सिंक्रोनस, जो आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है दैट विल फेल देयर. सो आवर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फेल्स इफ वी हैव डेटा लाइक ऑडियो और वीडियो, जो कि हमको वॉच करना है, वी वांट टू वॉच इट लाइव, फॉर एग्जांपल इट्स कमिंग स्ट्रीमिंग वीडियो कमिंग ऑन यूट्यूब एंड यू वांट टू वॉच इट, okay, your movie, for example my video, you're watching YouTube directly, a streaming video is coming, you cannot allow synchronous transmission there because synchronous transmission frame level पे आपका synchronization करेगा, लेकिन अगर बहुत सारी फ्रेम्स आपने बना लिए हैं उनकी डेटा रेट चेंज हो सकती है, ठीक है. तो इसलिए पूरे डेटा का सिंक्रोनाइजेशन करना है, एंड दैट व्हाट वी डू इज इन द लास्ट वन, दैट इज आवर आइसोक्रोनस. So इसमें synchronization is not done on frame level only but of the whole data. So here your audio and video, if we have to send audio or video, your synchronous transmission fails and we have to use the isochronous. Getting me? So with this ends our data transmission, and we go to the next thing, that is our okay, we go to the next thing, that's our standards. Now we are sending serial, we are sending parallel or whatever, but there need to be some standards. So we have the transmission standards. देखिए, आप सेंड कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, आपको किस तार से कौन सा काम लेना है, कितनी आप वायर्स रखेंगे, कितनी पिन्स रखेंगे, आपका मॉनिटर यहाँ पे है, ठीक है, आपका प्रिंटर है, उसमें पिन्स नहीं होती बराबर, जैसे मॉनिटर आपका है इसमें पिन्स होती हैं, कितने कौन सी पिन क्या काम करती है, कितनी पिन्स रखनी है, एक स्टैंडर्ड है. जो भी मॉनिटर केबल होगी उस हर एक का एक ही बराबर होगा, उसमें कोई ये नहीं होगा, बिकॉज दे रन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड. आपका प्रिंटर पोर्ट है, उसमें कितनी पिन्स हैं वो बराबर होगा एवरीवेयर. फॉर एग्जाम्पल आपका ये क्यों नहीं है, पेन ड्राइव क्यों नहीं है, इसके जो आगे कनेक्टर है यूएसबी पोर्ट, दैट यूएसबी पोर्ट इट इज अ स्टैंडर्ड. जो भी आप यूएसबी आएगा, चाहे आपका प्रिंटर हो, चाहे आपकी पेन ड्राइव हो, चाहे आपका कुछ भी हो, आपको मोबाइल फोन कनेक्ट करना है, इट इज अ स्टैंडर्ड. इसी तरीके से अगर आपको दो कंप्यूटर्स के आपस में दे वांट टू टॉक टू ईच अदर, राइट, नेटवर्किंग में हम क्या करते हैं अक्सर, व्हाट वी डू, वी बेसिकली टॉक बिटवीन द टू computers or mobile phone and all, any device which want to talk to each other. तो उसमें जो आप स्टैंडर्ड्स नहीं लगेंगे क्या, कि जो कनेक्टर्स आपके होंगे इट विल हैव अ स्टैंडर्ड, एंड देयर आर टू बॉडीज who define these standards. One is EIA, one is ITUT. So EIA is electronic में क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, okay, and the next thing is ITUT. ITUT means International Telecom Unit. Okay,
सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक हमारा है और दूसरा है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनिट. These are the two guys who set the standards for these. Before going to that, we have two terms to learn. One is called the DTE and one is called the DCE. ये दो आपको समझ आए. ये दो स्टैंडर्ड फिक्सिंग बॉडीज हैं. ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं. One is the EIA, Electronic Industry Association. One is ITUT, that's International Telecom Unit. So what the two terms which we want to discuss here is DTE, DCE. DTE means data terminal equipment, and DCE means data connecting equipment, EQUIPMNT. Your data terminal equipment is basically your this could be, what is data terminal equipment is something which sends or receives data. What could be that? A computer, a laptop, a mobile phone. It basically wants to send or receive a data. That is your DTE. What is DC? What is that? It is basically a modem. Which DTE actually talks to a DCE basically, right? है ना? You want to send, for example, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो या you want to send from one device to another device, आपको बीच में मॉडेम लगा होता है which converts that जो आप डेटा सेंड करना चाहते हो into the signaling and all. मॉड्यूलेशन करता है ना, that's why the name modulation. And demodulation we have read. मॉड्यूलेशन पढ़ा ना मैं. बिकॉज जो आपको सेंड करना है दैट विल बी सिग्नलिंग. वो सिग्नलिंग कौन कराएगा? मॉडेम. आपका डिजिटल डेटा यहाँ से है, उसको एनालॉग बनाना है. या फिर जहाँ जब आपने एनालॉग भेजा, आप टेलीफोन से एनालॉग आया, वो आप कंप्यूटर में जाना है, उसको डिजिटल कन्वर्ट, सो एनालॉग टू डिजिटल होगी, डीमॉड्यूलेशन होगी. So there will be modulation, demodulation, this will be done by model, and this is what DC. So DTE basically has to talk with the DC, data equipment. ठीक है? डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट आपका कौन है? कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, योर मोबाइल फोन, एनीवन व्हिच वांट टू सेंड. जो डिवाइस होगा जो सेंड और रिसीव करना चाहता है. बट डीसी इज द गाय विच विल लेट इट टू हैपन, जो इसको सिग्नलिंग कराएगा एंड ऑल. ठीक है? सो बेसिकली थिंग्स हैपन लाइक दिस. ये आपका DTE है. इट वांट टू सेंड अ डेटा बट इट हैज टू टॉक फर्स्ट टू द DCE. आपके पास DCE होगा वहां पे. ठीक है? लेटर ऑन वी विल सी वी डोंट नीड DCE इवन. देन व्हाट्स कॉल्ड अ नल मॉडेम. एंड देन यू विल सेंड whatever the medium you will use, that is your choice. कि आपके पास क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है, कोएक्शियल केबल है, is this the twisted pair or this is a wireless, any media. Okay, that is agreed upon some media, so accordingly DC will convert. अगर आप वायरलेस है then your DC should be wireless. It may be the wireless router. ठीक है? जैसे मैं नेटवर्क यहाँ पे I'm getting the network here, right? I'm getting the network here, for example. How I'm getting the network here? Using the Wi-Fi. ठीक है? So this ZX DSL is connected here. It is what? It's a Wi-Fi. It's a router. So this is my DC. And the medium here is the air. That's a wireless. It's a wireless. 802.11g is the IEEE standard. So this is the medium. Then you may have on the other side also the DC and then the DTE, which is the receiver. This is the sender, right? So you need an interface. So what this chapter basically is about, interface, to design an interface, right? So what we are trying to do is मैंने इसका नाम क्या लिखा ऊपर चैप्टर का? ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड्स, राइट? बेसिकली व्हाट इज द ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड इज इंटरफेस. आप इंटरफेस बिल्ड करना चाहते हो. सो व्हाट काइंड ऑफ इंटरफेस वी विल हैव?
जो आपके सिलेबस में है और जो मशहूर है लेकिन ओल्ड है, वो आजकल यूज़ नहीं होता, दैट इज कॉल्ड RS-232, and this question comes in exam regularly about the RS-232, right? And around 10 marks question is this RS-232. It was called RS-232, but these days this is not called RS-232, it's called EIA-232. So it was called basically the RS-232 standard interface. It is a serial interface, right? And we have to design it how it is built, and we'll see everything of it. And it is now called as EIA. What is EIA? Electronic Industries Association, RS-232, or simply you can call it as EIA-232. If you see the new books, they will write EIA-232, not your RS-232 at all, because that's the old name. The new name is EIA-232. Now, whatever it is, it got in the third revision. We have EIA-232A, EIA-232B. Then the third revision was what's called as EI, which we'll read today, is EIA-232C. EIA-232. This is the third revision of EIA basic 232, or you can say 232A. So what is the EIA-232? This is an interface. So now we'll read about it and perfectly will understand each and everything. So we have EIA-232C interface. To deal with any kind of interface, you have 4 things to keep in the mind. कितनी चीज़ें दिमाग में रखनी है? पूरा ध्यान रखो, इसको अंडरस्टैंड करो. एंड ये बड़ा टफ दिखता है क्वेश्चन लोगों को, लेकिन है नहीं, बड़ा इजी है. अंडरस्टैंड इट केयरफुली, स्टेप वाइज, एंड यू आर डन. तो 4 चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं जब आप स्टैंडर्ड बनाते हो. कोई भी स्टैंडर्ड जो बनाते हो आप, इंटरफेस का कोई इंटरफेस बनाना है आपको, या कोई भी चीज़ का स्टैंडर्ड बनाना है, यू हैव टू कीप 4 थिंग्स इन माइंड. हाउ मेनी? Number 1 is the mechanical specifications. ठीक है कि भैया मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन क्या है इस स्टैंडर्ड की. वो मैकेनिकल में क्या चीजें आएंगे? वो तो फिजिकल पार्ट्स आएंगे ना. मैकेनिकल में फिजिकल पार्ट्स आते हैं. दैट मीन्स व्हाट फिजिकल पार्ट्स वी हैव इन द स्टैंडर्ड? ए पिन स्ट्रक्चर. मैं किसकी बात करूं? मैं जो मॉडम जो आपका है ना, ये या जो आपका ये देखो मॉनिटर जो है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मॉनिटर का जो ये है ना, ये आगे वाला, हम इसी की, यही तो इंटरफेस है. यही तो यहाँ से इस तार में से आपको मॉनिटर यहाँ पे जो यहाँ पे चल रहा है, आप दिख रहे हो मेरे लैपटॉप में मॉनिटर लगा है. ठीक है, बाकी तो तार है, लेकिन इंटरफेस कहाँ है? द कनेक्टर, राइट. हम इसी कनेक्टर को डिजाइन करना चाहते हैं, बट नॉट फॉर the monitors, on we are trying to do for the networking, for connecting 2 computers, I'm saying. So that will be between the modem and your, जो आप यहाँ पे लगाओगे, जो आपकी Cat5 ट्विस्टेड पेयर मैंने परसों उस दिन भी दिखाई थी आपकी. ठीक है, देन RJ45 कनेक्टर गो टू इथरनेट पोर्ट. ठीक है, RJ45 जाता है ना, उसके बाद वो जाएगा यहाँ पे आपको मॉडम के साथ. देयर बी सम मेल एंड फीमेल कनेक्टर्स. जो RJ45 में आपने लगाया यहाँ, ठीक है, फिर दूसरे कंप्यूटर में लगाओगे या मॉडम के अंदर लगाओगे. मॉडम से फिर वो जाएगा आगे, फिर काम होगा. ठीक है, मॉडम इज योर DC, राइट. तो ये बनाने के लिए पहला काम जो हम करेंगे, दैट इज मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन. व्हाट मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन मींस? व्हाट वी हैव अ पिन स्ट्रक्चर. व्हाट इज द पिन स्ट्रक्चर, राइट. एंड हमारे पास 2 वर्जन्स हैं EIA-232 के. एक को हम बोलते हैं DB25 और दूसरे को बोलते हैं हम DB9. So we have 2 standards in the EIA-232. One is the DB25 and DB9. And why we call it DB25? Because we have 25 pins in DB25
And why we call it DB9? Because we have the 9 pins only. So अगर मेरे पास DB25 था, वो 9 कैसे बन गया, है ना? ये थोड़ा सा अगर इसका पिन स्ट्रक्चर बनाएंगे थोड़ा सा ऐसा होगा, DB25 का होगा, DB25 जो मेरे पास है, ठीक है, दिस इज पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 13, फिर पिन नंबर 14 से पिन नंबर 25, ठीक है। इस तरह मॉनिटर आपका होता है, ऊपर में ज़्यादा पिन है, नीचे कम पिन है, ऊपर 13 पिन है, नीचे 11 ही पिन है, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं इसमें कि 9 पिन आउट ऑफ दिस 25 पिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 9 पिन आउट ऑफ दिस 25 पिन आर इंपॉर्टेंट, द रेस्ट आर रिडंडेंट। इसलिए हमने DB9 में उन बाकी रेस्ट को निकाल ही दिया है, भाग ही दिया है, ठीक है। After 25, 9 are important, but the rest ones are redundant. They are used for control and all. So we have removed them in the DB9 because they are redundant. If we don't use them, there is no problem. इसलिए हम उन 9 pins के ऊपर काम करते हैं फिर। But that will not be in our mechanical specification only says that कि आपका जो ये है पिन स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है। एंड द विड्थ जो इसकी है दैट इज समथिंग 47, जो विड्थ हमारी है 47.35 प्लस माइनस 0.13 mm विड्थ। जो हमारी विड्थ इसकी है कनेक्टर की दैट इज 47.35 प्लस माइनस 0.13 mm। प्लस माइनस या तो कम या थोड़ा सा ज़्यादा, या प्लस 0.13 या माइनस 0.13, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, बट 47.35 हमारा होगा mm विड्थ। किस चीज़ की? कनेक्टर की। दिस इज आवर मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन। तो मैंने आपसे कहा 4 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब हमें कनेक्टर बनाना है। पहली कौन सी मैकेनिकल में हमने ये कहा कि हमारे पास क्या है, क्या कितने हैं, 2 हैं स्टैंडर्ड्स, है ना, DB25 एंड DB9। और दूसरा हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन में क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिकल में हम ये बताएंगे कि हमारे जीरोस जो हैं और वंस हैं वो किस वोल्टेज से रिप्रेजेंट होते हैं। सीधी बात है ना। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन क्या होगा, जैसे अगर जीरो रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी जीरो, अच्छा आप उसको किससे करोगे रिप्रेजेंट, और वन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, लाइक दैट। जो हमारा यहाँ पे जीरो है, व्हाट वी डू इज वी सेड एवरीथिंग अबव +3 इज जीरो and anything below -3 is 1. That's what we do in this. Anything above +1 is +3 is 0 and like this. So for what we do is we say like this, हमारी रेंज देते हैं हम, ठीक है। तो लॉजिकल जो आपका 0 है that will represent by the voltage +3 to +25। हमारे पास आधी बुक्स, कुछ बुक्स +15 लिखती है, कुछ 25 लिखती हैं, सो आई टेक 25, ओके। और जो बेस लाइन इसकी है, बेस लाइन जो हम बेस लाइन कह रहे थे, बेस लाइन इज +12 वोल्ट, ये वोल्ट्स है। सो लॉजिकल 0 जो आपका होगा +3 वोल्ट to +25 वोल्ट, कोई भी वोल्टेज आ जाए, +3 से 25 तक कुछ भी आ जाए वो 0 लिया जाएगा। और बेस लाइन 12, यानी कि 12 के आसपास हम लेते हैं। और इसी तरीके से लॉजिकल 1 विल बी -3 वोल्ट टू -25 वोल्ट, और उसकी भी बेस लाइन है -12 वोल्ट। इसमें ये फ़ायदा हमारे पास है कि देखिए हमने एक जो भेजा है हमारे पास, ये 0 है यहाँ पे, ओके। ये हमारा +3 है, मान लीजिए ये +25 है यहाँ तक, ये -3 है और ये -25 है, ठीक है। इस रेंज में अगर मुझे कुछ आता है, दिस रेंज, ठीक है,
और इस रेंज में अगर कुछ आता है मुझे, दैट विल बी 1. दिस विल बी कंसिडर्ड एज 1 एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज 0. कोई भी इस रेंज में अगर आ जाएगा मुझे, ठीक है, इन दिस रेंज, इफ आई हैव वोल्टेज इन दिस रेंज, आई विल डीम दैट एज अ 0. ठीक है, बात समझ आती है? ना फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें ये लिया था फॉर एग्जांपल, और जो यहाँ पे होता है एनकोडिंग जो हमारी होती है इसमें, एनकोडिंग भी मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल में ही आ जाएगा. दैट इज एनआरजी लेवल पोलर. हाँ, एनकोडिंग जो हम इसमें लेते हैं किसमें, when you define it, you will write it that the encoding we use in case of the EIA 232 is NRZ level. NRZ level तो पढ़ चुके हैं, है ना? What is NRZ level doing? है ना? से फॉर एग्जाम्पल वी आर रिप्रेजेंटिंग, क्योंकि हम जीरो कह चुके हैं ना, प्लस पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें मेरे पास एक वोल्टेज आ रही है, ये वाली आ रही है मुझे. ठीक है, दिस विल बी जीरो. वाई दिस विल जीरो? बिकॉज माई वोल्टेज इज कमिंग अंडर द, कभी कभार आपका जो वोल्टेज होगा दैट विल बी लाइक यू नो, इसमें एटेन्यूएशन हो गई या कुछ हो गया, या कभी बहुत ही एटेन्यूएशन हो गई. ठीक है, ये कम वोल्टेज पे आ गया, बट दे विल बी ऑल टेकन एज जीरो. चाहे आपको फ्लैट आ गया, चाहे आपको एटेन्यूएटेड है, कर्व्ड है, कुछ भी है, इस रेंज में फॉल कर रहा है, दैट विल बी टेकन एज जीरो, नो प्रॉब्लम व्हाटसएवर. सो ये फायदा होता है रेंज का, क्योंकि हमें पता है कि हमने भेजा, मान लीजिए 12 वोल्ट का मैंने भेजा, क्योंकि बेस लाइन मेरी 12 है ना, मैं भेज रहा हूँ 12 वोल्ट, लेकिन मुझे पता है इसमें या तो एटेन्यूएट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट बराबर है यहाँ पे. ठीक है, ये तो आइडियल है हमारे पास, ये वाला, ये 12 वोल्ट बराबर है, 12 वोल्ट पे है ये, मान लीजिए. ठीक है, ये क्या है, अच्छा ये लॉजिकल जीरो था, ये 12 वोल्ट बराबर है. ये जो है ये 12 वोल्ट से ऊपर चला गया है, इसको एम्पलीफिकेशन कुछ हो गई है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 25 के अंडर ही है ना. अच्छा, इसको एटेन्यूएशन हो गई है, ये डिक्रीज हो गया, ये तकरीबन 4 वोल्ट बन गया है. ये मान लीजिए ये 4 वोल्ट में बन गया, और कर्व आ गया, इसको पूरा पूरा भी नहीं रहा, फ्लैट फ्लैट भी नहीं रहा, एटेन्यूएशन इतनी हो गई है, कर्व हो गया है. लेकिन हमारे पास रेंज है, रेंज से ये चीज़ है कि ये सारे हम लेंगे एज ए जीरो. सो अगर एटेन्यूएशन होती भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर भी इसको जीरो लेंगे. ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर, यहाँ से इस साइड से भी, नेगेटिव साइड से भी हम वंस का यही हिस्सा होगा, तो इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? एनी प्रॉब्लम्स? सो दिस वाज योर व्हाट, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन. ठीक है, और मैंने इसमें बताया कि हम इसमें क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल एनर्जी लेवल. और जो डेटा रेट इसका है वो कम ही है आज के लिहाज से, लेकिन उन दिनों बहुत था, 20 किलो बिट्स पर सेकेंड है. ओके, इट इज 20 kbps. That means not that much. Is it bytes or bits? Just check it out. हाँ, किलो बाइट्स अगर होगा तो कैपिटल भी लिखेंगे, अगर बिट्स होगा तो स्मॉल भी लिखेंगे. Okay, that's keep it from mind. Just check it out. Is 20 kilobytes or kilobits? But it's very less. But these days, that is why we don't use this thing. These days we have later things. We have new things. ठीक है, बात समझ आती है? Are you getting me? What I'm saying? अच्छा, और लेंथ कितनी लेंथ तक ही चलेगा? ओके, दैट विल बी 15 मीटर्स. 15 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा ये. दैट विल बी अराउंड 50 फीट, राइट? 15 मीटर होता है कुछ 49 पॉइंट समथिंग फीट, 49 पॉइंट समथिंग, क्लोजर टू 50 फीट. सो इसमें 50 फीट तक ही चलेगा. ठीक है, इसकी वायर पे 50 फीट तक चलेगी. उसके बाद आपको कुछ रिपीटर या कुछ लगाना पड़ेगा इसको. बात समझ आती है ना क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन. हमारा फिजिकल स्पेसिफिकेशन हो गया, यानी कि मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन हो गया, सॉरी, और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन हो गया.
अब तीसरा हमारा जो है, जो कि अहम है, दैट इज योर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है। In functional specification, what we do is we say what each pin do. What is the function of each pin, right? And we said we have either DB25 or we have DB9, and basically the 9 pins are used whether it is DB25 or DB9. So we will give the pin structure of these nine and just discuss what they are used for. ठीक है। ये मेरा मान लीजिए DTE है, और इट मे बी सम कंप्यूटर और मोबाइल फोन व्हाटएवर। हमारे पास कनेक्टर होते हैं मेल एंड फीमेल। जो आपका कंप्यूटर होता है उसके पास मेल कनेक्टर होता है। क्या होता है? दैट स्टार्ट्स मेल, सो दिस इज अ मेल कनेक्टर। व्हाट? ये मेल कनेक्टर समझते हो ना आप? जैसे आपके पिन्स हैं, देखो वहां पे पिन्स भी, हम जैसे इसका भी बोलते हैं ना मेल फीमेल। जो आप इसमें प्लग लगाओगे वो मेल है, वो जो है वो फीमेल है। ठीक है। सो जो जिसमें डालोगे वो फीमेल होगा, दैट दिस विल बी द मेल कनेक्टर एंड फीमेल कनेक्टर। So DT basically will be the male connector, and we'll discuss those जो हमारे पास नाउ मैंने कहा ना, जो इंपॉर्टेंट है DB9 में तो नाउ ही है। और इस साइड कौन होगा हमारा? DCE। व्हाट इज DCE बेसिकली? और मॉडेम के पास क्या कौन सा कनेक्टर होगा? ठीक है। जो पिन 1 होती है, ठीक है, जो पिन 1 आपके पास है, दिस इज यूज्ड फॉर द ग्राउंड। ठीक है। जो पिन 2 हमारा होता है, दैट इज फॉर ट्रांसमिट। जो आपको सेंड करना है डेटा, सेंड इट थ्रू द फ्रॉम DTE टू DC। इफ यू वांट टू सेंड डेटा, सेंड इट यूजिंग द पिन 2। पिन 2 होती है जिसमें हम यूज करते हैं, क्योंकि पिन 2 या क्योंकि सीरियल ट्रांसमिशन है ना, कितने बिट्स में ट्रांसमिट होगा? एक ही बिट्स में होगा, बाकी कंट्रोल बिट्स असल में है। सो थर्ड बिट विल बी फॉर रिसीव, दैट मीन्स फ्रॉम DCE टू DTE। एंड चौथी पिन आपकी है, वो है आपकी रिक्वेस्ट सेंड। तो लिखते हैं फिर इसमें उसको। पांचवी पिन आपकी है रिक्वेस्ट टू सेंड और रेडी टू रिसीव। कैरियर डिटेक्ट, मे बी इसमें मैं बुक से भी देख लेना पूरे से, मे बी आई हैव डन रॉन्ग समवेयर। आई थिंक इट इज राइट बट स्टिल you may see the book. The 9 is data. This I will not call 9, I will call it 20th bit. If it is DB9, then it is 9. But if it is DB25, it is the 20th bit. Data terminal ready. Now what happens here is, cut it quickly.
ओके, देखिए क्या होता है कि जब आपका डेटा टर्मिनल रेडी है, कंप्यूटर ऑन हो गया, आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया, सो इट asserts दिस डेटा टर्मिनल रेडी वन। दिमाग रखो, मूवमेंट पक्का, just concentrate, don't lose your concentration, right? What I'm saying is, ये थोड़ा लेंथी जा रहा है बट बस वी आर फिनिश्ड। डेटा टर्मिनल रेडी जो है ना, एसर्ट्स, हम एसर्ट कहते हैं, एसर्ट, एसर्ट हियर मींस टू सेट लॉजिकली, टू सेट लॉजिकल वन, हम इसको लॉजिकल वन यानी कि इसको सेट करते हैं। डी टी डेटा टर्मिनल रेडी कब होगा? जब डी टी आपका रेडी है, जब कंप्यूटर ऑन है, इट एसर्ट्स यानी कि इसको सेट करना है एज ए वन। तो ये जो लाइन होगी यहाँ पे, ये वन होगी, उसका मतलब हो गया कि इसका जब ये वन होगी ये लाइन, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होगा जरा बताएंगे कौन होगा उसके बाद? लाइन नंबर 6, बिकॉज इफ डेटा सेट रेडी मीन्स अगर आपका डीसी रेडी है, जब डीसी रेडी होगा इट विल एसर्ट हियर एज अ वन, ठीक है। दिस लाइन यानी कि ये लाइन वन होगी, इट विल एसर्ट डेटा सेट रेडी मीन्स आपका डीसी भी रेडी है। बात समझ आती है? अगर टेलीफोन लाइन पे या कुछ पे अब वहां पे डेटा है, अगर डेटा है वहां पे जो कि रिसीव करना है, ठीक है, देन वी हैव अ लाइन 8 विच सेंसेस द कैरियर, कैरियर डिटेक्ट, कि ये डिटेक्ट करता है हाँ जी टेलीफोन लाइन में कुछ आ रहा है, मुझे ये देना है या लेना है, ठीक है। बात समझ आती है? तो इसी तरीके से अगर फिर ये जो है, ये बंदा जो है डीटी भेजा जाता है, इट सेज रिक्वेस्ट टू सेंड, रिक्वेस्ट कि ये अगर इसको डीटी को कुछ भेजना है, इट विल आस्क डीसी कि मुझे भेजना है, इट विल रिक्वेस्ट डीसी भैया मुझे भेजना है, ताकि डीसी तो आपस में होगा ना, इट्स कॉल्ड हैंड शेकिंग। ये लास्ट में प्रोसीजरल स्टेप जो हमारा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि रिक्वेस्ट टू सेंड, व्हाई डोंट वी राइट इट? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजरल, जो चौथा हमारा है दैट इज द प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशन। Procedure specification is a protocol. It is a protocol, right? Like in which we have like handshaking. There are a lot of for example यहाँ से DT हो गया तो उसने DC सेट रेडी कर लिया, ओके। डेटा टर्मिनल, अगर से डेटा टर्मिनल रेडी कर लिया तो वहाँ से वो वापस उसको करेगा डेटा सेट रेडी, है ना। अगर इसने DTR किया, इसने इसको DSR करना है। बात समझ आती है? इसी तरह से अगर आपने रिक्वेस्ट किया है, फिर रिक्वेस्ट टू सेंड, फॉर एग्जाम्पल यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड, व्हाट इज रिक्वेस्ट सेंड मीन्स? DT वांट्स टू सेंड, और DC वापस में क्या करेगा? रेडी टू रिसीव, ये एक्नॉलेज करेगा इसको वापस। जब ये, क्योंकि जब रेडी टू रिसीव आ जाएगा तभी आप भेज सकते हो। देखो मैं भेजना चाहता हूँ, व्हाट इज DT, व्हाट इज DC, यू आर गेटिंग प्रॉपर्टी और नॉट? फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग योर फ्रेंड्स, आई वांट टू टॉक टू यू, आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, देयर इज एन आइडिया इन द ब्रेन ऑफ अ शादाब फॉर एग्जाम्पल, एंड ही वांट टू सेंड इट टू द Ramiz, right? Now his brain is the DT which wants to send something, and Ramiz's brain is also the DT which wants to receive that idea which is being generated in what? Shadab's brain. Idea कहाँ से आई थी? ठीक है? Now how he will send? He needs a DTE. Sorry, he needs a DCE. That's called data circuit terminating equipment. मैंने इसको शायद लिखा था डेटा टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, खा रही वहां पे क्या लिखा था मैंने? DCE का डिफिनेशन? नो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। हाँ देखिए, डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट कहाँ पे लिखा था मैंने? हाँ ये तो गलत लिखा है मैंने। इट इज डेटा सर्किट
terminating equipment. अच्छा, अब इसका DC कौन बनेगा तो बताएगा कोई मुझे? शादाब का DC, what will become the Shadab's DC now? Because his brain is not DT, which want to send the idea. What will be the DC? Exactly, mouth, which will convert that idea into some form of a signal. His mouth, his larynx, okay, sound box, the larynx, mouth, tongue and teeth, they all convert that idea into the talk, and that travels then into a form of signal which can travel in the air, and that goes into the what is the DC in him then? Ear, because his ear will receive that and convert that into the form that will be understood by the brain. So this is what happens here, same logic. So प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में ये तो आपस में तालमेल पड़ना चाहिए ना. डीसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे डेटा रिसीव करना है, डीटी को कैसे पता चलेगा कि मुझे डेटा सेंड करना है. ठीक है, तो डीटी वांट टू सेंड डेटा, वो उसको करेगा रिक्वेस्ट टू सेंड. लाइन नंबर कौन सी थी वो? 4th ना, रिक्वेस्ट टू सेंड. वापस अगर मान लीजिए मॉडम डेड है, लिसन हियर व्हाट आई एम सेइंग, आई वांट टू सेंड डेटा बट मॉडम बैठा है, मैं भेजना शुरू कर दूं क्या? मैं भेजना शुरू कर दूं. आई वुड लाइक टू सेंड डेटा, शुड आई सेंड? द प्रॉब्लम इज दैट मॉडम कुड बी डेड, okay, or the system which I want to send, that may be dead. So I have to wait for the request ready to say receive from the DC. The DCE will tell me here this thing, that I am ready, come on, send now. Okay, if it is not dead, or if the computer, the recipient computer is not dead or whatever, so you will get a signal ready to receive, come on, I'm ready. And when you are done with that, then you will transmit using the line number 2. Okay, or you may receive from line number 3. If you want to transmit, you can transmit, or if you want to receive, you can receive from the line number 3. You getting me? In the procedure specific, you will write all these things. But basically, in the function specific, we will tell these functionalities. In procedure specific, you will not tell that this is the transmit line, this is the receive line. This you will tell in the function specification. When you define this question, you will start writing the right one is for the ground, 2 is the line 2, pin 2 is used for the transmission of data, pin 3 is used for reception of data from DC to DT. इसमें लिखेंगे आप जिस for the transmit data from DT to DC and so on. पहले ये होगा, पहले इसमें ये भी लिखेंगे ना, पहले यहाँ से शुरू करेंगे लाइन 20 से. ठीक है, पिन नंबर 20 से, if the DT is on, it will assert data terminal ready. In DB9 में pin 9 and DB25 में pin 20. And if the modem or DC is the ready, it will assert data set ready, pin number 6. Then if you want to send data, request to send, 4th, ready to receive, and so on. Then these are the functionalities. But in procedure, what do you write? In procedure, what do you write? In procedural specifications. In procedure specific, you write about this handshaking. Okay? Procedure specification is a protocol which lets the DC and DT to handshake with each other and make them to send data. It's a stepwise thing, right? That you want to send first the data terminal ready, because the DTE asserts data terminal ready, and DCE asserts data set ready. So action का reaction होगा. ठीक है, इसी तरीके से आपने इसमें दूसरा लिख सकते हो, जैसे आपने रिक्वेस्ट सेंड करना है, who will request to send? DT, and ready to receive. So इसका रिएक्शन क्या होगा? रेडी टू रिसीव, कि DT is saying रिक्वेस्ट टू सेंड, मैं भेजना चाहता हूँ. ठीक है, जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, वापस कौन सा आएगा? रेडी टू रिसीव. So it will be ready to receive. You getting me what I am saying? And so on. So this is your procedural specification where you will have these action reaction pairs. You getting me? So with that we end our this RS232, which was in your syllabus, or EIA 232. C basically the 3rd revision, right?
and we have the advanced version of it, that is the RS242 or 249, right? That is not in our syllabus, and if we have, maybe we continue this tomorrow. You getting me? Sure. And I guess that's all for today. What was to stop it? Perhaps